मुझे लोग यमुना भिक्षुक के तौर पर जान रहे हैं। जब किसान आंदोलन हो रहा था किसान बिल को लेकर, पक्ष के सांसदों से और विपक्ष के सांसदों से ये सवाल किए कि किसान बिल में क्या कमी है कि आप आंदोलन कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर कम से कम 12,000 से 13,000 के बीच पक्षी हैं और सब प्रकार के पक्षी हैं हमारे यहाँ पर। मोर की आवाज ऐसे सुनाई देती है, कोयल की आवाज सुनाई देती है, और हमने तो वहां पर उनके लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। एक भारतीय के हिस्से में सिर्फ 28 पेड़ हैं, सिर्फ 28। और कनाडा में एक नागरिक के हिस्से में 9,000 पेड़ हैं, रूस में 4,000 हैं, अमेरिका में 700 प्लस हैं और चाइना में 120 हैं। तो सोचिए कि हम पेड़ों के मामले में कहाँ पर हैं। आपकी जमुना मैया बीमार हैं और आप चादर तान के सोए हुए हैं। अगल बगल से मेट्रो गुजरती है यमुना बैंक से, मेट्रो की हर साल एसी उसकी बदबू से खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति का घर किसी नाला नाली के किनारे होगा, देखिएगा हर साल एसी को सर्विस कराना पड़ता है। I am Dr. Aswini, working as an assistant professor at Department of Environmental Studies, University of Delhi. It's a privilege and an honor for me to moderate this session. One thing is common globally, that we globally different states have the different problem. They all have their own problem of economy, society, and everything. But globally, one common issue is environment, and we all are aware about the fact that what is the pressing issue of the environment today globally. So if you talk in terms of the environment, you will find that we all have been suffering, and the stage has reached now that we all have the craving to cope up with the situations. The stage where we are now around the globe, that we want to rescue from the current situation to the original one. How much it is possible and what we are working in that area, that we need to understand. So is that rescue possible? If you look at the history of the environment, you will see that right from the industrialization and up to now, in what extent we have deteriorated the environment. When we say the deterioration and we have deteriorated, we have been deteriorating the environment, our role is prominent. In every instances, in many instances, we see and we think and we understand that the government has the role to look into the environmental aspects. So in every circumstances, for all the issues, likely and unlikely, we see that government have been making the policy, and that policy is going to govern the society and will be able to cope up with the situation. Is really that fact that is it possible to do that without our participations? Really, I'm very fortunate and honored to be here to moderate. I don't want to speak more, just I wanted to highlight the issues that where we are. So if you look at the environmental issue, you see your air is contaminated, your air is polluted, your water is polluted, food is polluted, surroundings is polluted. These all are the basis of the life, and we don't bother about that. One thing I always highlight in our classes and wherever I go to speak, I always say that you see when the election come, what we expect from the representative, what we ask from the representative, we ask to them about our sewer system, road, jobs, and all these aspects. We talk very prominently, and they also look after that. Do you talk to them regarding our environmental issues? We find no, we don't bother about that. So if you don't highlight, if you don't drag these issues before them, political representative, those who represent us in the parliament or the legislative assembly, is it possible to solve the problem? Answer is no. Another thing is that in terms of the environmental concern and issues, there are several stakeholders. Government is one of them. If you look into the stakeholders, the media is the second stakeholder, NGO is the third stakeholder, civil society is the fourth stakeholder, academic institution is the fifth stakeholder, researchers are the stakeholder, and we as a civil society is also a major stakeholder. What do we do for that? What our role there? And what are our personal contribution in that?
So at that instance, at that several moment, we think that we are busy in our personal life, in our professional life. We have the family. अरे सुबह से शाम तक मुझे ये काम है, मुझे जॉब में जाना है, परिवार है, बच्चे हैं, ये है, वो है. Do not we need to think at that moment that in what way we should contribute, because we are the beneficiaries at individual level. We all are the beneficiaries. We take air, we take water, we take food from the environment. So then our role and duty is also there to nurture the environment, to look into that. So today's session is all about that. We have to look into that, and we are very fortunate that we have 3 panelists with us, and they will talk about that, how they are contributing in them, what are their roles, and in what ways that is going to protect your environment, to help in the rescue. So already the introduction has been done, and we are very fortunate to be with us Sri Ravi Shankar ji, Kamal Kashyap ji, and Yogendra ji. They all are 3 eminent personalities of our societies. They are working in their own field. They are professionals. They are working. They are in job. They have also their families. And apart from that, they are taking out time from their personal 24 hours to invest their own time and resources for the environment. And when I say they are investing their own time and resources for the environment, that means they are working for us. They are working for us to protect the environment, to preserve the environment, so that we could take a pure air, we could take pure water, pure food from the environment. So we should be thankful to them. We should say the activists. They are the environmental activists in the real sense. They are contributing a lot. So we will learn today from all of these eminent personalities. So sir, we are very thankful that you took out some time and you are here, and all the youth will be inspired from you. Without taking too much time, I would request now to start the session from each of our esteemed panelists. I would request that please share your views, your work, and about you, what you are doing for the environment, so that our youth can get engaged in that session, and they could be able to understand that how they are in position to participate in terms of the environmental conservation, environmental preservations, because individual participation is one of the important aspects. So if all the stakeholders will come together, will join together, then only this problem could be solved. Otherwise it is impossible, because policy framing is a part of the government, but we are the people who have to contribute there. So today we will learn from all of you. आप सबका स्वागत है इस मंच पे, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने काम को संक्षेप में युवाओं के बीच रखें. तो सबसे पहले हमारे दाहिनी साइड कमल कश्यप जी हैं. मैं इन्हीं से पहले निवेदन करूंगा कि अपना काम, अपने बारे में आप बताएं. ये जो मंच है, इस पे आने का मुझे मौका मिला, उसके लिए अश्वनी सर और इस संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं पेशे से पत्रकार हूँ और 2008 से प्लांटेशन कर रहा हूँ दिल्ली की सड़कों पर, स्कूलों में, ऐसे स्थान जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, वीरान जगह, बंजर जगह, जिनको लोग कह देते हैं कि यहाँ हम एक भी पौधा नहीं देख पाएंगे या नहीं देखा, ऐसी जगहों पर हम प्लांटेशन करते हैं. हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं है, उनको पेड़ बनाना है, क्योंकि पौधे लगाना बहुत आसान है, उनको पेड़ बनाना, उनकी बचपन से देखभाल करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, और हम इसके लिए कुछ दोस्तों का एक हमने ग्रुप बना रखा है, एजुट्री, और सारे दोस्त मिलकर अपने वर्किंग टाइम में से, अपने जीवन में से, सैटरडे, संडे, मंडे, जिसके पास जो टाइम होता है वो समय निकालकर उसको देता है. और हम सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं है. देखिए, पौधे लगाना बहुत आसान बात है. आपने भी देखा होगा कि सरकार बोलती है हमने 2 करोड़ पौधे लगाए, 4 करोड़ पौधे लगाए, लेकिन जब आप धरातल पे देखेंगे तो वो ना 2 करोड़ में से मुश्किल से 2 लाख भी नहीं बच पाते. उसका रीज़न है कि बिना देखभाल आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो हम जहाँ पौधे लगाते हैं, हम वहाँ परमानेंट पानी की व्यवस्था हम लोग अपने तरीके से करते हैं, जिससे कि पौधों को पर्याप्त पानी मिलता रहे. सुरक्षा के लिए लोहे की जाल की फेंसिंग हम लोग करते हैं, जिससे कि गाय, पशु पक्षी, या उस समाज में आपने देखा होगा ऐसे लोग जो चलते फिरते पौधों को तोड़ने में परहेज नहीं करते, या उनके ऊपर कूड़ा फेंकने में परहेज नहीं करते,
तो उनसे सुरक्षा भी हम लोग करते हैं। और 2008 से अब तक जितने हमने पौधे लगाए हैं उसमें से बहुत से पेड़ 25 फुट 50 फुट तक पहुंच चुके हैं, तो उनको देख के अच्छा लगता है। चूंकि अश्वनी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है इसलिए मैं कम ही बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। So plantation is one of the crucial aspects. We all know that what plants do. Actually, they provide oxygen for us, and they take carbon dioxide from the environment. So carbon dioxide is one of the major greenhouse gas who is responsible for the global warming. So now his contribution, you can understand what is the contribution, right? He is helping us to decreasing the carbon dioxide from the atmosphere, because that is the global sink for the carbon dioxide. So plantation is that much required for us. We all can understand. And most important aspect, that he is taking out time from his personal and professional life. That is learnable for us. हम सबको ये सीखना चाहिए। हम सब लोग परेशान रहते हैं, अपने जीवन में व्यस्त होते हैं और बताते हैं कि हमें टाइम नहीं है, सुबह शाम दोपहर हमारा शेड्यूल बना होता है। लेकिन हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से समय निकाल करके और हम प्लांटेशन का काम करके और पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये हमारा दायित्व है, व्यक्तिगत दायित्व है। मैंने आपको बताया कि वी ऑल आर द स्टेक होल्डर। सर, आपके इस कार्य का जितना सराहना करें हम सब लोग बहुत कम है। इतना बड़ा काम है ये हमारे लिए, और ये काम आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप सभी के लिए कर रहे हैं, हम सभी के लिए कर रहे हैं। पेड़ के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पानी। पानी हमारे लिए हमारा जीवन दायिनी है। जीवन हमको मिलता है पानी से और हवा से। हमारा दिल्ली का अगर आप देखेंगे तो पानी का सोर्स हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है यमुना, माँ यमुना, जिसका माँ का संज्ञा दिया गया और माँ का संबोधन करते हैं हम नदियों का। ये हमारा संस्कार है, हमारा कल्चर है। खैर, माँ का तो हम क्या ही रक्षा कर सकते हैं, माँ हमारी रक्षा करती है। लेकिन अब समय ऐसा है कि ऐसा हम लोगों ने कर दिया है कि अपने माँ का रक्षा हमें करना है। हम सबके लिए बहुत ही गौरव का बात है कि हम सबके मध्य में रविशंकर जी है, जो माँ यमुना के रक्षा के लिए भिक्षाटन पे निकले हैं। हम सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो भिक्षा में आप अपने इनके झोली में हम माँ यमुना की रक्षा का प्रण डालें। ये पैसा डालने के लिए नहीं बोलते हैं, ये कुछ धन डालने के लिए नहीं बोलते हैं। संकल्प डालें हम अपनी तरफ से इनके झोली में भिक्षा के स्वरूप। आज हम सब लोगों के मध्य में है और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रविशंकर जी हमारे साथ हैं, और ये भी अपने व्यक्तिगत जीवन से समय निकाल करके, इनके भी परिवार है, इनका भी प्रोफेशनल लाइफ है, इनका व्यक्तिगत जीवन है, तो हम सबके लिए सीखने जैसा है। रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे मंच पे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना अनुभव साझा करें हमारे बच्चों से, ताकि इन लोगों को भी मार्गदर्शन मिल सके। मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। बाय प्रोफेशन मैं पत्रकार हूँ, लेकिन पिछले 3 तारीख से मुझे लोग यमुना भिक्षुक के तौर पर जान रहे हैं। मैं यमुना जी के लिए भिक्षाटन पे निकला हूँ। इसके पीछे का पृष्ठभूमि मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि आप लोग नौजवान साथी हैं, जीवन आपका लंबा है, समस्याएं आपके सामने और चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं। भाई साहब, जब किसान आंदोलन हो रहा था किसान बिल को लेकर, तो हम कुछ साथी, चूंकि पत्रकार हैं, तो पक्ष के सांसदों से और विपक्ष के सांसदों से ये सवाल किए कि किसान बिल में क्या कमी है कि आप आंदोलन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि पता नहीं, हम विपक्ष में हैं तो विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों से पूछा कि क्या अच्छाई है इस किसान बिल में कि आंदोलन नहीं किया जाना चाहिए, तो कहे अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, सत्ता पक्ष में हैं, तो मेज थपथपा कर बिल पास कर दिए। तो हमारे मन में आया कि ये बहुत सारे सांसद जीत के आते हैं, 5 साल सांसद भवन में सो के चले जाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं होता है वस्तुतः। तो क्यों न एक संसद के बाहर संसद लगाई जाए। तो हमने ऐसे लोगों को चुनाव किया जो संसद बनने के योग्य हैं, लेकिन धन बल के अभाव में वो संसद नहीं बन सकते हैं, टिकट नहीं मिल सकता है, लेकिन अपने अपने फील्ड में कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो देश भर के ऐसे लोगों को चिन्हित किया और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2022 में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद इसलिए नहीं आए कि ये तो सरकार के विरोध में कोई कार्यक्रम हो रहा है, संसद से बाहर संसद हो रहा है। खैर,
उसके बाद महिलाओं को की सशक्तिकरण के बारे में जो चर्चाएं होती थीं, बहुत पहले से होती रही हैं। तो हमने नारी संसद किया ऋषिकेश में, जिसमें देश भर की 22 राज्यों से महिलाएं आई थीं। 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। इधर आप लोग देख रहे थे, अखबारों में खबर आ रही है, मीडिया में भी देखने को मिला है कि यमुना जी में झाग, यमुना जी सूख गई हैं। यमुना जी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। तो पिछले साल 2022 में कमल जी, हम लोग यमुना जी पर खबर करने कुछ रिपोर्टर वजीराबाद गए हुए थे। वजीराबाद यमुना जी को देखकर मन में तकलीफ हुआ, और हम लोग लौटते वक्त कुछ पत्रकार साथी आपस में बात कर रहे थे कि खबर तो हम लिख देंगे, खबर हर साल लिखते ही हैं, इससे होगा क्या। फिर मन में एक विचार आया कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। अमूमन पत्रकार क्रिटिसाइज ही करता है, आलोचनात्मक खबरें हम लोग लीड लेते हैं। हुआ कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो मैं 3-4 महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में छात्रों के साथ बैठक किए, प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठक किए, व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक किए, धार्मिक संगठनों के साथ बैठक किए। बैठक करते करते एक माहौल थोड़ा सा तैयार किए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पड़ता है, तो 4 जून को चूंकि संडे भी पड़ रहा था, जून में गर्मी जानते ही हैं आप लोग, दिल्ली की गर्मी कितनी प्रचंड होती है। 4 जून को वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक 24 किलोमीटर मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन हमने बनाने का प्रण लिया था। उसका उद्देश्य केवल ये था कि यमुना जी को कम से कम आप लोग जाके देखें, जिस यमुना जी को आप यमुना मैया कहते हैं। देखेंगे तो कुछ संवेदना हो सकता है आपकी जगह। और दिल्ली में गजब का उत्साह देखने को मिला। 24 किलोमीटर, लगभग 1 लाख लोग ह्यूमन चेन बना के तपती गर्मी में सुबह 7 बजे ही खड़े हो गए थे। महाकुंभ का आगाज हुआ था यमुना जी के किनारे। उसके बाद हुआ कि कहीं आपस में, चूंकि हम खुद सवाल करते हैं और पत्रकार जो मित्र हैं वो तो, उनके तो कुछ हम लगते नहीं हैं, वो तो पकड़ भी लेते हैं कि भाई इवेंट करने चले थे क्या आप। तो हमको लगा कि सच बात है, ये तो सही कह रहे हैं कि इवेंट हो गया, कार्यक्रम हुआ, खत्म। तो एलजी के पास हम 3-4 बार गए और एनजीटी में हमने एक याचिका डाली। एलजी को भी पार्टी बनाया, डीडीओ को भी बनाया, बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग को भी बनाया। मुकदमा चल रहा है। फिर लगा कि कुछ ग्राउंड पे करना चाहिए। सभागार में कोई कार्यक्रम कर लेने से, संवाद कर लेने से बात तो बनेगी नहीं, करेंगे क्या। तो यह स्वतः स्फूर्त, किसी ने मुझसे कहा नहीं था। मेरे घर परिवार, बाल बच्चे हैं, नौकरी से ही परिवार का पालन पोषण होता है। स्वतः स्फूर्त आया कि मैं यमुना जी के लिए भिक्षाटन करूंगा, क्योंकि एक पोस्टर भी छपता है तो 10 रुपया तो उस पर खर्च होता है। इतना पैसा है नहीं कि वैसे ही 25 दिन बीतता है तभी घर में लगता है कि अब भोजन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भिक्षाटन करे, तो भिक्षाटन का सीधे सीधे लोग तात्पर्य लगा लेते हैं कि पैसा वैसा मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि तन मन धन से हम आपके साथ हैं। तो जो जिस लायक है उसी से साथ दे, इसमें इस महायज्ञ में आहुति डाले। तो 3 तारीख से हम भिक्षाटन पे निकले हुए हैं और भिक्षाटन का क्षेत्र दिल्ली एनसीआर से लेकर ब्रज क्षेत्र है। और यह भिक्षाटन का आखिरी पड़ाव होगा अगले भैया दूज के दिन, चाहे वो नवंबर में जिस तारीख को भैया दूज पड़े। इस भैया दूज से अगले भैया दूज तक, इस भैया दूज से अगले भैया दूज तक मैं यमुना भिक्षुक हूँ। नमस्कार। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रविशंकर जी हम सबके साथ हैं और आप माँ यमुना की रक्षा के लिए आपने प्रण लिया है और भिक्षाटन पे निकले हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सब लोग जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको आपके साथ हैं। हम सबके मध्य श्री योगेंद्र जी हैं। आप का परिचय अभी हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि सर जेल सुपरिटेंडेंट के कार्यरत हैं और
मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जेल में काम करना कैदियों के लिए कितना कठिन कार्य है। वहाँ कार्य करते हुए समाज के लिए सोचना, मैं अभी सर से बात कर रहा था गेस्ट रूम में, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि वहाँ का जो दबाव है, वहाँ का जो प्रेशर है, ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर है, और उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए सोचना या किसी भी दूसरे कार्य के लिए सोचना जिससे हम समाज लाभान्वित हों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर का जो अपना व्यक्तिगत जीवन है या प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अलावा सर का जो कार्य है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और ख़ास करके वो बर्ड कंजर्वेशन पे काम करते हैं। उनका बहुत ही अतुल्य योगदान है, और अभी सर से हम लोग खुद सुनेंगे उनका अपना कार्य और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे वो इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब सर अपने से बताएंगे। योगेंद्र सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, अपने कार्य के बारे में बताएं। थैंक यू अश्विनी जी। आप सभी को मेरी तरफ से नमन, और खुशी इस बात की है कि आज गुरुपर्व भी है और आप लोग इन्वायरमेंट के सेशन में आए। आज इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। आज सुबह मैं एक बार पढ़ रहा था तो देखा कि दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 400 से पार चला गया। ग्रेप 3 लगा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल हूं और ऑनररी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से मैं 7 साल से जुड़ा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में भी मैंने काम किया है लगभग 3 साल। तो मैंने सुबह एक बार में पढ़ा तो देखा दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। प्रदूषण भी कई प्रकार का है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, पृथ्वी प्रदूषण है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं। ये जो पोजीशन आज यहां पर है उसके जिम्मेदार हम हैं, और इस पोजीशन से हम बाहर निकलें कैसे, वो भी हमने ही सोचना है। अभी सर बता रहे थे कि प्लांटेशन, हम भी प्लांटेशन करते हैं, काफी प्लांटेशन किया हमने। तो हमने जब शुरू में प्लांटेशन किया तो हमें काफी खर्चा आया। एक पेड़ हमें खरीदने में 50 रुपए भी लगे। अब आम का पेड़ हमने लिया जिसकी हाइट 3 से 4 फीट थी, तो वो 125 रुपए का मिला मुझे। अब ये तो पैसा तो देखो लिमिटेड है सबके पास में, हम भी नौकरी में डिपेंड है। तो हमने क्या किया, 3 साल से हमने आम के गुठलियां वो उगानी शुरू की। और हमने अभी बरसात का मौसम था तो हमने ढेर सारी गुठलियां लगाई, और वो निकले, उनकी कोपलें निकली, और अब इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। और अब हम उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा सारा पैसा बच गया। सिर्फ हमें थोड़ा समय लगा ना इस चीज के लिए। यही काम हमने जामुन के लगाए, और जितने भी फलदार वृक्ष थे उनके हमने बीज लगाए, और हमें फ्री में हमारा काम हो गया। इन्वायरमेंट भी सेफ हुआ और इन्वायरमेंट के लिए पेड़ भी मिले, फलदार वृक्ष लगाए हमने। हम ज्यादातर फलदार वृक्ष पर लगाते हैं। अब आते हैं बर्ड्स के ऊपर। अभी आपने देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट में से बहुत सारे बर्ड्स गायब हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, जिसमें से गोरैया है, गिद्ध है, तोता, मैना। 2000 के पास में तोता मैना कितनी आवाज आती थी हमारे इन्वायरमेंट में, घर के आसपास भी। और गोरैया ची 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 करती थी तो हमें पता लगता था कि सुप्रभात हो गया। और वह जब शाम को ची 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 की आवाज आती थी तो हमें लगता था कि संध्या हो गई। वो हमसे विलुप्त हो गई है, चली गई है वो यहां से रूट के। उसमें इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि अभी इन्वायरमेंट में अभी प्रदूषण है, प्रदूषण से भी वो हमसे दूर चली गई। उसके प्रोटेक्ट के लिए भी हम काम करते हैं। अभी हमने मंडोली जेल में हमने ये प्रोग्राम चलाया था, तो आप कभी हमारा प्रोग्राम होगा तो अभी कोई आने का इच्छुक हो तो मैं उसको बुला भी सकता हूं। तो वहां पर हमने गोरैया के लिए किया, तो अब वहां पर हजारों की संख्या में गोरैया है। मैं आपको बताऊं, इन्वायरमेंट के अंदर सेव करने के अंदर पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब ऑक्सीजन के लिए हम देखेंगे कि पीपल, बरगद, नीम वगैरह, ये पेड़ हमें ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और देखा होगा तो इनके कुदरत ने, देखो सब कुदरत ने ऐसी रचना बना रखी है कि जिससे सबको फायदा हो। बरगद का जो बीज होता है बिल्कुल छोटा सा होता है वो, हाँ,
और वो कहीं पे भी उग जाता है। यही पीपल का हाल है। अब बर्ड्स जो हैं, इनके बीज को लिफ्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार घर के अंदर भी कहीं कोने में भी पीपल का पेड़ उग जाता है। वहां पर तो हमने या आपने तो बीज नहीं गेरा है ना, वो पक्षी लेके आए हैं, वहां पे लिफ्टिंग करके लेके आए हैं। वो गिलहरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो बीज छिपा देती है जमीन के अंदर और भूल जाती है वो, और वो पेड़ बनते हैं। तो वो भी इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, और बर्ड्स को सेव करना वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे तिहाड़ जेल में कुछ ज्यादा दूर नहीं है यहां से, तिहाड़ जेल के अंदर कम से कम 12,000 से 13,000 के बीच पक्षी हैं, और सब प्रकार के पक्षी हैं हमारे यहां पर। मोर की आवाज ऐसे सुनाई देती है, कोयल की आवाज सुनाई देती है, और हमने तो वहां पर उनके लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, और हम वहीं पे इलाज भी करते हैं। उनका जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो हम देते हैं। जो गंभीर रूप से घायल होते हैं तो हम उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं। मैंने खुद कम से कम भी 2 से 2,500 पक्षियों को हॉस्पिटलाइज किया है, वहां से उठा के लेके गया हूं अपनी गाड़ी में, और वो सब ठीक होके आज पर्यावरण की शोभा बने हुए हैं। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन तो सबने देखा होगा, काफी लोगों ने देखा होगा, कितनी अच्छी खूबसूरती है वहां पर। मगर तिहाड़ जेल के अंदर उससे कोई कम खूबसूरती नहीं है। इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमने दिया हुआ है, पूरा ग्राउंड है। हाँ, बतखें घूमती हैं उसके अंदर, तिवारी जी तो अच्छे से जानते हैं। बतखें घूमती हैं, कोयल की आवाज आती है। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। जो नया प्रिजनर हमारे पास आता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या शुगर है, मैं यकीन से कहता हूं उनके कम हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट में जाके। ये चीजें उनकी डाउन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। हम दवाई भी नहीं देते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा हमने इन्वायरमेंट को दूषित किया है या इन्वायरमेंट का हमने दोहन किया है, आज समय ये आ गया है कि अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। आपकी उम्र कम है, आपकी लंबी उम्र है, आप सब लगो इसमें। सिर्फ अपने जीवन में पर डे छोड़ 1 घंटे का समय दो। जिस दिन ना भी दे सको तो चलो कोई नहीं भाई, काम भी हो जाता है। छुट्टी वाले ने तो पक्का ही दो इसमें, इन्वायरमेंट में। अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा अगर हम इसमें काम करेंगे, जैसे प्लांटेशन हो गया। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा तो कई लोगों ने अब भी कंस्ट्रक्शन चलाया हुआ है अपने घर में। सब अपना अपना सोचते हैं कि मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए। अब हमने मेरा छोड़ के पूरे इसका पूरी पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूं। इसका ध्यान रखना, सब पृथ्वी हमारी है। अपना छोड़ना है, मैं छोड़नी है, अपना अपनाना, अपना है ये सब। हमने कहीं पे भी हमें ऐसा लगे कि भी एनवायरनमेंट का कुछ नुकसान हो रहा है या हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, तो हमें वहां पर अच्छा करना है। हमें ये नहीं देखना कि नहीं हम निकलते हैं यहाँ से, नहीं ऐसा ये नहीं, करो जो अपना बन पड़े, जितना आपसे बन पड़े उतना करो। और प्लांटेशन है, प्लांटेशन की एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं प्लांटेशन हम करते हैं तो एक तो ऑक्सीजन के पेड़ हो गए, एक फलदार वृक्ष जरूर लगाओ। अपने जन्मदिन पे, अपने घर के किसी भी परिवार के सदस्य के जन्म में एक प्लांटेशन लगाओ। फलदार वृक्ष लगाने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि जो हमारे ये पक्षी जो हमसे दूर चले गए हैं वो भी आएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे। हाँ, और सारे फल तो खा के नहीं जाएंगे ना, वो हमारे लिए भी छोड़ देंगे, हम भी फल खाएंगे, उसमें छाया भी देगा वो हमें। हम फिर वही बात मैं करता हूँ, मैं तिहाड़ जेल पे फिर आता हूँ मैं। हमारे तिहाड़ जेल में आम के पेड़, जामुन के पेड़, इतने पेड़ हैं। आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा वहां पर। बहुत अच्छा, तिवारी जी ने तो सब पता है इन बातों का। बहुत कुछ है वहां पर। हम अंदर जाते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि हम दिल्ली के अंदर हैं। तो ऐसा ही आप भी अपने पार्क में बनाओ, अपना घर की गार्डन में बनाओ, या अपना कहीं पे भी जो आसपास गार्डन है उसकी देखभाल करो, अपने लेवल पर जो हो सके कर सके। थैंक यू, आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार। अभी जब हम सब लोग सर से सुन रहे थे तो एक बात मुझे लगा कि ऐसे जेल का नाम हम सब लोग सुनते हैं तो मन में एक भय सा होता है कि अरे जेल है जेल। अभी सर से सुनने के बाद लगा कि जेल भी खूबसूरत है और हम सबको जाना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो सर, जेल को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सर बीच में बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, जब जेल का उदाहरण दे रहे थे
तो बार बार करे थे रविशंकर जी को तो सब पता ही है, तो मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि सर मतलब तो मैं बता दूं कि सर रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब जेल उनका जाना आना रिपोर्टिंग के लिए हो जाते हैं। तो खैर एनीवे, ऑन लाइटर नोट, तो हम सब लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए, और अगर जाने के लिए कुछ आप लोगों को अच्छा नहीं जाना चाहिए खैर, तो मैं दो कारण से बोल रहा हूँ। एक तो जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो जो जेल में रहने वाले कैदी हैं वो हमारे समाज के ही बीच के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से भटक गए या कुछ गलतियां हो गई जिसके कारण से वो जेल में है, तो उनको भी जाके समझने का मौका लगता है, देखने का, सुनने का मौका लगता है। और दूसरा, जो सर जेल में काम करते हुए जेल की खूबसूरती को बढ़ाया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, प्लांटेशन को लेकर के, वो भी जब हम देखेंगे तो वो प्रेरणा मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप आकर के हमारे मंच का शोभा आप तीनों ने बढ़ाया है, हम सबको आप लोगों ने प्रेरणा दिया है। इस प्रेरणा के लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। हम सब लोग सुन करके धन्य हैं कि इस तरह से भी अपने व्यक्तिगत जीवन से समय निकाल करके हम पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं। शायद ये आज हम सब युवाओं को ये प्रेरणा मिलेगा। एक बात मैं जानना चाह रहा था कमल जी कि जब हम प्लांटेशन का बात करते हैं तो ये कौन सी ऐसी बात है जो आपको ज़्यादा प्रोवोकिंग लगी कि आप प्लांटेशन के कार्य के लिए निकले, एक बात ये, और दूसरा कि कैसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन से, क्योंकि प्रेस का काम बहुत ही हेक्टिक काम होता है और पढ़ने वाला काम है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ना गलत हो जाए तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सब कुछ करने का काम होता है, तो सारे में से समय निकाल करके, और क्या ऐसा तथ्य आपने देखा कि आप ये प्लांटेशन के लिए काम शुरू किया था, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में हर एक भारतीय के हिस्से में कितने पेड़ आते हैं? हमारी स्थिति जो है पेड़ों के मामले में, एक भारतीय के हिस्से में सिर्फ 28 पेड़ हैं, सिर्फ 28। और कनाडा में एक नागरिक के हिस्से में 9000 पेड़ हैं, रूस में 4000 हैं, अमेरिका में 700 प्लस हैं और चाइना में 120 हैं। तो सोचिए कि हम पेड़ों के मामले में कहाँ पर हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे, जब मैं पत्रकारिता, शुरू से एनवायरनमेंट और हेल्थ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और फेवरेट बीट रही है मेरी, तो जब मैं देखता था कि भाई हम बात करते हैं पर्यावरण की, जैसे अश्वनी सर ने बोला कि सबकी जिम्मेदारी, हम बात करते हैं पर्यावरण की, लेकिन जितने भी लोग आसपास के पत्रकार, समाज के लोग, दोस्त, सब कहते थे यार ये तो सरकार का काम है, ये तो सरकार का काम है। क्या सब कुछ सरकार कर सकती है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी। सांस आप लेंगे, शुद्ध हवा आपको मिलेगी, एनवायरनमेंट आपका अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको भी तो थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैं 2008 में मैं सर दैनिक जागरण बागपत में था, वहाँ एक तालाब था, बिल्कुल सूखा तालाब, आसपास कुछ नहीं था। वहाँ पर मैंने वहाँ के प्रधान से कहा कि इसको हम हरा भरा कर सकते हैं या पानी इसमें आ सकता है? तो बोला कि योजना बनाएंगे फिर देखेंगे। अब योजना बनने में आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान, आपने पंचायत मूवी देखी होगी, तो योजना बनने में और ये सब होने में कितना समय लगता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं 50 पौधे खुद वन विभाग से लेकर आया, तालाब के किनारे लगाए और उनको खुद ही सींचना शुरू कर दिया। आप कभी उधर आपका जाना हो तो बिल्कुल जो जिला पंचायत कार्यालय है उसी के बगल में वो तालाब है, वो पौधे आज 50-50 फुट के हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार अपना काम करे, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, किसी के पास 5 मिनट तो 5 मिनट निकालिए, आप अपनी जिम्मेदारी बांट लीजिए। आपके एक मित्र ने पौधा लगाया है तो आपकी रोजाना ड्यूटी होनी चाहिए कि आप उसमें पानी डालें, आप उसकी देखभाल करें। जिम्मेदारी बांटने से ही काम होगा। दूसरी बात ये है कि हम सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते। अब सर ने, जेलर साहब ने बात करी कि AQI की, AQI आज सुबह का 415 था, कल 430 था, उससे पहले 530 पहुंच चुका था दिल्ली का AQI। नॉर्मल हमें 25 से 50 AQI बहुत अच्छा माना जाता है, 50 से 100 मध्यम माना जाता है, उसके ऊपर सामान्य से ऊपर माना जाता है। हम डेंजरस जोन में, मतलब गैस चैम्बर में रहने हम। रीज़न है ना उसका कि हमारे पास दिल्ली में 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास स्थान बहुत है लेकिन हम
कोशिश ही नहीं करते ना। हम सड़कों पे, फुटपाथ पे कर सकते हैं, हम अपने घर के आसपास पौधे लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं जिम्मेदारी हमारी नहीं, सरकार की है। तो जिम्मेदार हमें बनना पड़ेगा भाई, बिना जिम्मेदार बने कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे, लगभग 16 साल मैं खालसा से पास आउट हूँ और 16 साल हो गए मुझे कॉलेज छोड़े हुए। आप लोगों को देखा तो मुझ में एक जोश फिर से दोबारा और जाग गया कि मैं और अच्छा करूँगा। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ नहीं तो 5 पौधे लगाइए, ऐसे स्थान पे लगाइए आपको लगता है कि यहाँ लगा के मैं इनकी देखभाल कर सकता हूँ, मैं उनको रोज़ पानी दे सकता हूँ। आप देखिएगा, एक पौधा आप लगाएंगे, उसको बढ़ता हुआ देखिए ना, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आपको खुशी मिलेगी। इस काम को कीजिए, और आगे आज नहीं करेंगे आप तो और 5 साल 10 साल में स्थिति ये हो जाएगी कि सरकार ये कानून बना देगी कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो कोई कानून ना बने या हम पे कोई चीज़ थोपी ना जाए, इसलिए एक आम नागरिक की तरह हम अपनी जिम्मेदारी समझें, उसे पूरा करें, उसको निभाएं। थैंक यू। सर ने कानून का बात किया, हम सब लोग को ये जानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारा सिविल सोसाइटी का एज ए सिविलियन हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एक होता है लॉ इम्पोज करना, तो सर उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा लॉ इम्पोज ना हो जाए जिसमें आपको करना ही करना है। अभी तो निवेदन के रूप में है कॉन्स्टिट्यूशन में कि करिए कि आपका जान बचेगा। एनीवे, हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का बात है कि आपने प्लांट्स के नंबर को लेकर के कि प्लांट की संख्या क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति पर में, और माइन्यूटली सी हाउ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इट इज कि एक व्यक्ति पे कितना पौधा होना चाहिए। सर ने देखा कि इतने कम पौधे हैं हमारे पास, और इसीलिए हम प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन हम सब लोग एकेडमिक्स में, हम स्टूडेंट्स हैं, हम प्राध्यापक हैं, एकेडमिक सेक्शन में हैं, हम सब लोगों को भी इस तरह से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को। मैं सर से, रविशंकर सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर आपको कैसे ये प्रेरणा मिला कि माँ यमुना का रक्षा हमारे ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, ये मुझे करना चाहिए। मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ ताकि हमारे युवा उससे प्रेरित हो सके। बीच में अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन लूँगा। मेरा नाम रोहित है। मैं स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान में सह प्राध्यापक हूँ, और आज बड़ा अच्छा है कि मुझे आप सभी महानुभावों से मिलने का और सामने सुनने का मौका मिला। मेरा सवाल ये है श्रीमान रविशंकर जी से कि आपने जो मतलब अपनी योजना जो आपने बनाई है कि पूरे साल भर आप लोगों से भिक्षा ले रहे हैं, तो इसका आने वाले समय में आप किस तरह की योजना बनाना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं। कि हो सकता है आप कोई जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं, या आप कोई ऐसा मशीनरी खुद तैयार करना चाह रहे हैं जिससे यमुना को खुद ही साफ किया जाए, या सरकार को सचेत करने के लिए लोगों को साथ लेकर आना चाह रहे हैं। तो उसका मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है आने वाले समय में, उसका रिजल्ट क्या आप सोच रहे हैं, वो एक बार थोड़ा सा बताइए। कोई मुझे 1 रुपया देगा या 1 घंटे का टाइम देगा, उसको सवाल तो पूछना ही चाहिए कि भाई आप करेंगे क्या, ये हम पैसा दे रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, इससे क्या करना है। देखिए, शुरू से मेरा अनुभव रहा, मैं कहता रहा कि सरकार का काम सरकार करे, समाज का काम समाज करेगा। समाज का भी कुछ दायित्व बनता है। हर काम सरकार, जैसे हम सड़क पे कूड़ा फेंक दें और कहें कि एमसीडी वाले उठाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं होंडा सिटी से जाते हुए, घर का कचरा लेके आते हैं, धीरे से फाटक खोलते हैं, सड़क के किनारे फेंक के चल देते हैं। तो समाज का क्या काम है, तो हमने एक आपको देंगे अश्वनी भाई, एक सिटीजन चार्टर रिपोर्ट मैंने बनाया हुआ है। आप इन्वायरमेंट साइंस के विद्यार्थी हैं तो जानते होंगे, हमारे मेंटर कहिए, हम लोग जब यमुना के किनारे पैदल चले थे, 3 दिन में पूरा 24 किलोमीटर चले थे, तो साथ में डॉक्टर फयाज खुद सर हैं जो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है बुराड़ी के पास, उसमें हैं और आपके यहाँ ड्यू के ही छात्र रहे हैं। उसको देखकर हमको, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क को देखकर अच्छा लगता है। मैं एक रिपोर्ट बना के एलजी साहब को दिया हूं और इस पर चर्चा हो रही है कि वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज तक 17 यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क बन सकते हैं।
आप नहीं बना सकते हैं तो सोशल सेक्टर के लोगों को दे दीजिए। मेरी मीटिंग हुई थी तो मैंने कहा था गायत्री परिवार के लोगों को मैं खड़ा कर दूंगा, उनका बड़ा नेटवर्क है, आप उस जगह को दे दीजिए, वह बायोडाइवर्सिटी पार्क वहाँ बना देंगे। निरंकारी समाज के लोगों, हमारे साथ ये सब लोग जुड़े रहे जब हम कार्य कर रहे थे। तो मैंने कहा है कि मयूर विहार के पास बहुत सारी जगहें हैं, आप यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए दीजिए। उसमें भाई साहब ने बताया कि पेड़ पौधे की बात एलजी साहब भी लगवा रहे हैं, तो एलजी साहब यमुना और दिल्ली के एनवायरनमेंट के हिसाब से पेड़ पौधे लगेंगे ना। आप वहाँ यूकेलिप्टस जाके लगवा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि यमुना के किनारे कौन से पेड़ पौधे उगते होंगे, हाँ चंदन लगवा दे रहे हैं, तो कौन से पेड़ पौधे वहाँ उगते होंगे या वैज्ञानिकों से राय परामर्श विचार विमर्श करके वहाँ लगाया जाए। तो उसके पीछे की, जैसे आपने अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगा दिए, अपने बच्चे के जन्मदिन पे लगवा दिए, मैरिज एनिवर्सरी पर लगवा दीजिए, पिताजी की याद में लगवा दीजिए। जैसे अभी मोदी जी ने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, तो बहुत सारे लोगों ने लगाया। तो एक तो वृक्षारोपण हो जाएगा, हरियाली होगी, और दूसरी बात कि वहाँ एक अच्छा सरोवर उस जगह पे बन सकता है जिससे बाढ़ के पानी को संचित किया जा सके, और उस बाढ़ के पानी से यमुना जी सिंचित होती रहेंगी, रिचार्ज होती रहेंगी। एक काम है। दूसरा एक काम है कि हमने सोचा है कि यह तो एलजी के सहमत से होगा। एलजी से मैंने ये नहीं कहा है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दीजिएगा इसको, कोई मैं एनजीओ नहीं चलाता हूँ, कोई संस्था नहीं चलाता हूँ। हमने ये कहा कि ये 10-15 साल किसी चीज़ को डेवलप करने में लगते हैं और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम यमुना जी की बात कर रहे हैं तो कल यमुना जी साफ नहीं होंगी, इसके लिए एक लंबा समय लगेगा और निरंतर प्रयास करने की कोशिश होगी। तो ये एलजी जी एक एमयू साइन कर दीजिए, जगह चिन्हित कर दीजिए, हम 10 साल में इसको दें, कहीं नेम प्लेट नहीं, कहीं पत्थर नहीं, कहीं निर्माण का कार्य नहीं, उसी तरीके से प्राकृतिक तरीके से उसका विकास किया जाएगा। दूसरा एक है जो एलजी साहब एक कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो जो हम खुद कर सकते हैं जन सहयोग से, जन भागीदारी से, वह काम यह है कि हमने सोचा है कि यमुना शोध संस्थान जो यमुनोत्री से लेकर, जैसे आपके इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट के छात्र पीएचडी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते होंगे कुछ तैयार करने के लिए, तो उसमें वो सहयोग कर सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना पर रिसर्च तो हो ही हो। दूसरी बात यह कि हम हर साल 100 बच्चों को, जो 12वीं के अंदर के बच्चे होंगे, वोकेशनल कोर्स चला के गर्मी की छुट्टी में, नवरात्र के 9 दिन की छुट्टी हो रही है उसमें, या जैसे जैसे छुट्टी हो रही है उसमें, स्कूल मैनेजमेंट से बात करके बच्चों को गंगा के प्रति, जमुना के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति आप जैसे ही विशेषज्ञों को ले जाकर, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर एक संवेदना कहाँ से आई है हम नहीं जानते हैं, आप लोगों जैसे लोगों को ले जाके उन बच्चों को एक ट्रेनिंग कोर्स चलाएं, 2-2 महीने का चलाएं, ताकि एक संस्कार तो विकसित हो उन बच्चों में। तो हर साल यदि 100 बच्चे प्रशिक्षित होके निकलते हैं और 10 बच्चे ही अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तो एक लंबा चेन बनेगा। क्योंकि हम रहे ना रहे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके लिए भिक्षाटन का कार्यक्रम है। हमारे देखिए दोनों तरफ भिक्षुक संघ के सदस्य खड़े हुए हैं। जो लोग जैसे छात्र हैं तो पॉकेट मनी जो मिलता है 1-1 रुपए इन बच्चों को आप लोग दे दीजिएगा, अपने इच्छा अनुसार जिसको जो देना है। कहने का केवल तात्पर्य यह है कि अब भिक्षुक बनने की, मैं अपने मन से ही बता देता हूं, जो क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे उससे अधिक क्वेश्चन खुद मैं अपने आप से पूछ चुका हूं। क्योंकि यह साधारण, आखिर ये बताइए कि कोई अपने को भिखारी कहलाना पसंद करेगा क्या? जो भीख मांगता होगा वो भी छुप के मांगता है, वो जाके अपने इलाका बदल के मांगता है।
ये बहुत मतलब बहुत सारे लोग हमसे कहे अरे क्या काम कर रहे हैं आप, अब भीख मांगना ही रह गया था आपको, अब भीख ही मांगेंगे आप। हम कहे हाँ भाई ठीक है। हम लोग किसी न किसी से प्रेरणा लेते हैं। गौतम बुद्ध ने भिक्षाटन किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध मठों की स्थापना के लिए भिक्षुक संघ बनाया था। महावीर जैन ने नारी मुक्ति के लिए भिक्षुक संघ बनाया था। जिस सनातन परंपरा से हम लोग बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भिक्षाटन किया था। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिक्षाटन के बल पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हम आखिर में कहीं ना कहीं किसी को आदर्श तो मानते ही होंगे ना जीवन में। तो कुछ है कि दिमाग में आया कि ये जनता के सहयोग से ही यमुना जी के लिए कुछ करना है। और एक एक रुपए का ये सवाल इसलिए है कि आपको लगेगा कि मेरा भी स्टेक होल्डर है। जैसे सरस्वती पूजा होता है विद्यालय में, हम लोगों के यहाँ तो हम लोग इसमें भागीदार रहे हैं, तो 2-2 1-1 रुपया चंदा लगाते। दुर्गा पूजा होता है उसमें भी चंदा लग जाता है। गांव में काली पूजा होता है उसमें चंदा लगता है। अब तो ग्राम पंचायतों को अब पैसा मिलने लगा, पहले सड़क का निर्माण गांव के पैसे से ही हो जाता था। तो जब आप, ये जुड़ने का एक सवाल है, बस सवाल ये जुड़ने का है। फिर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछिएगा, बताएं। बहुत अच्छा सर ने जो बताया कि किस तरह से हम सबको सोचना चाहिए उसके बारे में। और आई मीन दिस इज़ वेरी important aspect for us, that apart from our normal routine life, how we think for some other thing which gives benefit to the society. So that is a major thing that we need to understand, and we should be participatory in nature for all those things. And initially I told that we are the stakeholder, and we are the major stakeholder in environmental conservations. So in terms of that, how we should take out time from our personal life, that we need to think about that. That is a very pertinent part. If you are not able to do that, then you can't expect the good air, good water, good food. If we are expecting without our contributions, मेरी सहभागिता बिना सहभागिता का अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं तो ये अन्याय है। हम जहाँ से फ्री में सब कुछ ले रहे हैं और वहाँ वो पॉल्यूटेड हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का बात है। हम वी आर ए फैकल्टी, आई एम ए फैकल्टी। हमने PhD किया, आप सब लोग कोई ग्रेजुएशन में होंगे, मास्टर्स में होंगे, आप कोई PhD में होंगे, बहुत सारे लोग फैकल्टीज़ होंगे यहाँ पर। हम सब लोग अपने आप को वी आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। हम सब के लिए ये these people are the intellectual people. They think for the society, they think for the environment, they think for the problems of the society. So I mean, we all should be very thankful to them that they are thinking for us. They are providing the resources, the good resources. They are trying to provide the good resources for us. So we should be very thankful. नमस्कार सर, मेरा नाम केसर है और मेरा क्वेश्चन रविशंकर सर से है कि जैसे आप यमुना के लिए काम करते हो, तो एक जो कॉमन इशू मैंने नोटिस करा है कि सब लोग अपने घर का जो भी मंदिर का सामान होता है सब यमुना जी में डालना प्रेफर करते हैं, और ऐसे बोला जाए तो भक्ति के नाम पे कोई सुनता भी नहीं है। तो मैं आपसे एक एडवाइस चाहूँगी जो मैं समझा सकूँ लोगों को या अपने आसपास कि ये सब ना करें। थैंक यू। यहाँ पे जितने छात्र बैठे हुए हैं, 1 साल के भीतर कितने लोग यमुना जी के किनारे कभी गए हैं? यमुना जी निजामुद्दीन पे फ्लाईओवर है, वहाँ पे कुछ बॉक्स बना के रखा गया है। ITO छठ घाट पे भी कुछ रखा गया था, लेकिन स्मैकियों ने उठा ले गए उसको। कुछ जगहों पे सरकार की तरफ से रखा गया है कूड़ादान टाइप में, कि जिसमें लोग जाएं और रख दें। तो कुछ नशेड़ी उठा ले गए, और जहाँ रखा है वहाँ भी चूंकि आस्था जुड़ा हुआ है कि यमुना जी में ही फेंकेंगे, तो गाड़ी रोकते हैं और उस कूड़ेदान में न फेंक के जाली तोड़ दिए हैं, उसी में से गिराते हैं। तो अमूमन हम कई बार जाते हैं, देखते हैं। तो मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो कुछ मैं बता रहा हूँ व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने किसी को, बड़े आदमी थे, हम स्कॉर्पियो से जा रहे थे, हम फेंक रहे थे। हम कहे कि क्या कर रहे हैं आप? तो कहे कि आपके बाप की यमुना है। हम कहे बाप की नहीं है, आपकी माँ है। तो अब आप
अपने माँ के अपने बचपन में तो लैट्रिन पेशाब किए ही माँ के आंचल में, अब बूढ़े हो रहे हैं फिर भी आप कर ही रहे हैं, तो तू में उनसे हुआ कुछ देर। ये अवेयरनेस का सवाल है, स्वतः पूछने का सवाल है। मैं एक चीज और बता दूं, इसी नवरात्र में जो हवन सामग्री था तो हमारी पत्नी भी कही कि यमुना में फेंक आइए हम ही को, और हम कहे यार किसी पीपल के वृक्ष के नीचे इसको रख देते हैं। तो अब घर में झगड़ा करें कि अब क्या करें, तो हुआ कि नहीं आप इसको फेंक दीजिए, और ऑटो कर दिए लोग और लाद दिए कि आप ले जाइए यमुना जी में फेंक दीजिए, आप तो कनॉट प्लेस नौकरी करने जाते ही हैं, वहाँ बगल में हैं, यमुना जी फेंक दीजिए नहीं तो बच्चों को भेजूंगी। अब मैंने लदवा लिया और द्वारिका के आसपास गया और किसी पेड़ के नीचे रख दिया, बता दिया कि हाँ फेंक दिए। समझाना बड़ा मुश्किल है इस तरह के आस्थावान लोगों को कि यमुना जी में इस तरह का काम न करें। गंगा जी में हरिद्वार स्नान कर रहा था तो एक सज्जन गंगा जी का पानी उठा के कुल्ला कर रहे थे उसी में, उनको पकड़ा, मैं कहा कि ऐसा मत करिए भाई, ये तो देखिए तो टोकिए। जैसे ये बहुत दिल्ली की बड़ी भारी समस्या है कि बगल में कोई पीट रहा है आप मुंह घुमा के चल दे रहे हैं। विरोध तो करिए, अब विरोध ही नहीं करेंगे तो देखिए सवाल ये है कि दिल्ली के लोग सरकार या पॉलिटिकल लोगों से क्या कहते हैं कि सड़क दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, डीटीसी में बस फ्री कर दीजिए, यही सब डिमांड होती है, खड़ंजा बनवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए, झाड़ू लगवा दीजिए। कभी आपने ये सवाल ही नहीं किया कि शुद्ध हवा पानी दो और नहीं तो भगो यहां से। कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि हम जिस यमुना को आप यमुना माई कहते हैं, यमुना मैया कहते हैं, वह यमुना मैया वेंटिलेटर पे हैं, उनके इलाज के लिए मैं भी छाटन कर रहा हूं। आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आपकी यमुना मैया बीमार हैं और आप चादर तान के सोए हुए हैं। अगल बगल से मेट्रो गुजरती है यमुना बैंक से, मेट्रो की हर साल एसी उसकी बदबू से खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति का घर किसी नाला नाली के किनारे होगा देखिएगा हर साल एसी को सर्विस कराना पड़ता है, हाँ उसके गैस से। आप सेंसिटिव है नहीं। अच्छा, दिक्कत यह है कि जो माँ बाप डीपीएस जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो शुरुआत ही सोचते हैं कि मेरा बच्चा किस पैकेज पे जा रहा है। इन्वायरमेंटल साइंस के छात्र हैं या आप अध्यापक हैं तो आपकी केवल जिम्मेदारी यह नहीं बनती है कि पीएचडी करा के निकाल दिए और बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ा दिए। अरे वो पढ़ा तो उसके जीवन में उतरा कितना, यह सवाल है कि आप चर्चा कर रहे हैं तो अपने जीवन में कुछ उतारिए और विरोध करना जरूर सीखिए। मैं जब विश्वविद्यालय के किनारे से होता हूं, हालांकि देखिए ऐसा नहीं था कि मैं विरोध करता था, अब मन करता है कि यदि काश मुझे पढ़ने का अवसर मिलता और मैं भी आप लोगों के ही उम्र में होता तो कुछ करता। आए हैं इस धरती पर तो कुछ करिए, पढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे, नेट निकालेंगे, जीआरएफ निकालेंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे। विदेश में डॉक्टर साहब सुना है आप ही जैसे लोगों से कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना जरूरी है इन छात्रों को, कि पहले आप कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट मिलता है, उस पर नंबर होता है कि आप सामाजिक सेक्टर में जाइए, काम करिए 2 महीना 4 महीना, तब आपकी डिग्री अवार्ड होगी। तो कुछ खुद करने की कोशिश करिए, और नहीं कोशिश कर पाते हैं तो बगल में बैठा कोई अच्छा कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाइए, उसका हौसला बढ़ाइए। हम कह रहे हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं तन मन धन, साथ देना है। मैं भी छाटन में चल रहा हूं, आप लोग नंबर दे दीजिएगा, विनय दास जी हैं, किसी दिन दो कदम चल लीजिए। नहीं कुछ तो सोशल मीडिया के जरिए जो हम पब्लिश कर रहे हैं उसको 4 जगह फॉरवर्ड करिए, कुछ तो मैसेज जाए कहीं। और नहीं कुछ है तो 2-4 रुपया दे दीजिए, आप पिंड छोड़ा लीजिए तन और मन से। लेकिन कुछ करेंगे नहीं और केवल मुंह से बोलेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। यह सवाल आप ही लोगों के भविष्य का है। 55 साल का उम्र है, 10-5 साल में हम भी करने लायक नहीं रह जाएंगे। 100 लड़कों को ट्रेनिंग देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो बच्चे कुछ तो करेंगे जीवन में, और ये आप लोगों के सामने की चुनौती है। तो इसलिए इस बात को समझने की बात है।
फिर कुछ होगा तो बताइए। सर माय नेम इज युवराज सिंह, मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग से हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंट भी जरूरी है और डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो इन दोनों किसी को एक को भी कर्टेल नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसा क्या करें हम कि मतलब इन्वायरमेंट भी मतलब इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों में बैलेंस बना रहे, क्योंकि किसी को भी कर्टेल करना सही नहीं है। और अगर डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे तो इन्वायरमेंट कर्टेल होगा, और इन्वायरमेंट की ही बात किया तो मतलब डेवलपमेंट भी कर्टेल हो सकता है। तो इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाए? थैंक यू। बहुत बढ़िया युवराज जी, आपने इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के डिबेट के बारे में we all are aware about that fact that we all need the development, and nobody will deny about that developmental process. Everybody needs that, it's required. But side by side, what Yuvraj was asking, that how we will be able to conserve and protect the environment with the developmental processes, because you can't stop the development. So we need to think parallelly about both the dimensions. आपने बताया नहीं कि किन से क्वेश्चन पूछना है, इसलिए मैं माइक दे नहीं पा रहा हूँ। अगर नाम बताएंगे तो मैं उनको दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं ही बोलता रहूँगा। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हु विल डू दैट, right? Again, what Ravi Shankar sir was telling to all of us, guiding to all of us, that the public participation, in what way we should participate. Here also, when we do some developmental work at our home, हम अपने घर बनाते हैं, यह हमारा दायित्व है, we should think about the environment also. And side by side, governmental project also need to think. I mean, the policies should come out in a way that government should make the policy of the development keeping in mind the environmental conservations. Is that has been happening? Yes, it has been happening. But where is the deficit? So deficit is the implementation deficit. Policy is there. There is no lack of policy in India. All the other states, when I say the states, the global platform, other states said about the policy and the law of the India is very strong. But we are very poor in the implementation part. So again, when implementation part comes into the picture, where it's our responsibility, we should follow. The rule is there. नियम है, ट्रैफिक के नियम है, पालन कौन करेगा? हम करेंगे। सब जगह पुलिस नहीं हो सकती, सब जगह हमको समझाने के लिए लोग नहीं हो सकते। सो अगेन इट्स आवर रोल, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इफ गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग, if government is not taking care of that, then what is the way out? So what Ravi Shankar sir was also highlighting in the beginning, in introductory remark, I also highlighted to all of you that what is responsibility, where we are responsible at, what we can do that. Election comes every 5 years after. So we are there. We are there to talk about that. What sir was also saying, that we always talk about the road, buildings, jobs, sewer system, all these things we talk to the representative and they are ready to do that. Are we in positions? Do we talk sometimes about the pure air? Sir was also saying, no, we never talk about. Why don't we talk? If you don't talk to your representative, those who are the major stakeholder at the platform, at the national platform, if you will not bring this issue before them, then they will not work, because they always do the politically correct things. They are the good people. They know these environmental issues, but you don't ask to them. जब तक आप मांगेंगे नहीं, तब तक मिलेगा कैसे? भूख के लिए हम जब रोते हैं बचपन में तो दूध हमें मिलता है, जब अभी भी कोई कष्ट होता है तो हम मांगते हैं. You have to ask to your people. You ask to the media people. Do you write about that? Have you seen since last 1.5 year or 1 year or 2 year or 5 year? Can you remember that how many debates has been happening on the prime time debate has been happening from the media side in the electronic news channel? Can you remember that? So these are the part we need to highlight before them, before the stakeholders. But keep in mind that we are also stakeholders. So this is our duty. And regarding the environment versus developmental debate, this is the duty of the government to bring such kind of the policy. And if government is not doing, then our duty is there to highlight that part, that you should bring that kind of policy. And these are the wonderful people, they are doing that. What they are doing, they are public, they are participating. They are doing their own movement from their own level. I mean, due to this developmental aspect, Yamuna is, dirty. So public participation in terms of the movement by Ravi Shankar ji, and then public participation by Yogendra ji for the biodiversity conservation. Why biodiversity is losing? We are losing biodiversity due to this developmental aspect only. We are cutting down the forest. We are polluting the water. We are degrading the land. We are doing everything. And then we expect from the government should do that. No. I'm sorry. We are wrong.
we should be participatory. We should highlight all these things. We should bring all these things before the representative. We should talk in terms of the participation, in terms of the movement. If you look into the history of the environment, you will find that when we started doing the environment, then in terms of the environmentalism, environmental movement happened. We started the movement. India was the first who started the environmental movement, if you can remember the past. So these are the best people, they are doing the environmental movement. So they are also working for those aspects of the deterioration of the environment, because the developmental process are deteriorating day by day to our environmental system. So they are working. Now it's our duty to work. Somewhere, somehow we will be in positions. You will be in position at different places, either in the policy making or the administration or in the teaching sectors somewhere. So then your role will become there, that how you have to frame the policy, how you have to convince the people to make such kind of the policy, how you have to convince the people to bring all these things into the picture. So obviously development is one aspect, and then the environmental conservation is other aspect, and how both will go parallel, that we need to take care, and all the stakeholders need to take care. So I want that all of you, if you want to answer this question, so you are most welcome. Kashyap ji want to also include some points from his aspect. So Kashyap ji. आपका शुभ नाम? युवराज, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हम लोग सब चाहते हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो पर्यावरण को लेके हमारी जिम्मेदारी है ना, आप चाहते हैं कि आप जहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ मेट्रो है या नहीं है ना, दिल्ली, अब तो दिल्ली के हर कोने में लोग चाहते हैं कि मेट्रो हो, बहुत जगह नहीं है। अगर आपके घर के पास मेट्रो है, मेट्रो बनने के बाद वहाँ सरकार ने जो पेड़ लगाए या पौधे लगाए, सरकार ने डेवलपमेंट किया, आपने उन पेड़ पौधों में कितनी बार पानी डाला? एक बार डाला? नहीं डाला। आप जानते हैं डेवलपमेंट के चक्कर में ही इस बार जो गर्मी थी वो फरवरी से स्टार्ट हो गई थी। अक्टूबर जो है, ये अक्टूबर 75 साल में सबसे ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर 35 से ऊपर है। नवंबर में जो है शिमला, सोलन, देहरादून में 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया, आप जानते होंगे, तो गर्मी से। रीज़न डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपनी जगह है, सरकार डेवलपमेंट कर रही है। एक आम नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। अगर सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो हम उस डेवलप हुई जगह को पर्यावरण संरक्षण, वहाँ पौधे लगाकर या वहाँ पौधों को संरक्षित करके, या वहाँ आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने एक पौधा लगाया, उसको बढ़ने में कम से कम 15 साल बढ़ेंगे, जो कैनोपी जैसा वो बन जाएगा, उसको बनने में कम से कम उसमें 20 साल लगेंगे। किसी भी डेवलपमेंट में सरकार पेड़ों को काटती, पौधों को नहीं काटती। एक पेड़ कम से कम जिसकी उम्र 20 साल 50 साल होती है, वो 6 से 7 लोगों को ऑक्सीजन दे देता है। लेकिन उस बड़े पेड़ के कटने के कारण उसकी जगह आप 1000 पौधे लगाओगे ना, वो भी वो कमी नहीं पूरी कर पाएंगे। तो इसलिए पहली बात तो संरक्षण कीजिए, आप पेड़ों का, पौधे लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए, उन्हें पेड़ बनाइए, सबसे ज़रूरी है ये। तो डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण आप और हमको ही करना है। हर चीज़ के लिए हम सरकार की तरफ ऐसे झांक के नहीं देख सकते, है ना। तो और कोई अगर साथी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो अश्वनी सर को बता दीजिए, है ना। थैंक यू। टाइम कॉन्स्टेंस इज ऑलवेज देयर। वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। हम सब लोग सुन रहे थे, हम सबके बीच में 3 समाज के, हमारे बीच के लोग काम करने वाले एनवायरनमेंट के हैं, कमल जी, रवि शंकर तिवारी जी और योगेंद्र जी। हम सबके लिए सौभाग्य का बात है कि ये सब हम सबके बीच में हैं, क्योंकि ये सब truly they are the heroes for the environmental conservation. They are working for the environment, and वो लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हम सब के मध्य में आए, हम सबका उत्साहवर्धन किया, हम सब को प्रेरणा दिया। हम सब लोग ये प्रेरणा लेकर के जाएंगे और हम सब लोग अपने तरफ से एनवायरनमेंट के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। हम सब लोग ये आज यहाँ से प्रण लेकर के जाएं।